پاکستان نوجوان کو تعلیم سے بدزن کرنے کے لیے بہترین ملک ہے۔ یہ نادر خیالات تھراپسٹ زویا حیدر کے تھے۔ نوکری یہاں نہیں ملتی، غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، پتہ نہیں ہم جیسے نوجوانوں کا کیا ہوگا۔ اتنا پیسہ پڑھائی پر لگاؤ اور ڈگری لینے کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کے لیے کوئی نوکری نہیں۔ اس نے غصے سے کہا، آپ ہر وقت منفی باتیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ انٹرویو دینے جا رہی ہیں اور نا امیدی کو دل سے لگا کر بیٹھی ہیں۔ زویا سے چھوٹی تائشہ نے بدمزہ ہو کر کہا۔ یہی سچائی ہے، زویا نے تلخی سے کہا اور سر پر دوپٹہ درست کیا۔ بیسٹ آف لک آپی، تائشہ نے مسکرا کر زوہا کو وش کیا اور بدلے میں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ یہ اس کا 10واں انٹرویو تھا، ہر انٹرویو میں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ سوری میڈم، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بندہ پوچھے تم نوکری دو گے تو تجربہ آئے گا نا؟ زوہا نے تلخی سے سوچا اور ایک بار پھر موبائل پر ایڈریس دیکھا۔ اس بار انٹرویو کی کال کسی ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی، بلکہ ایک پرائیویٹ تھراپسٹ کے طور پر اس کو انٹرویو کی کال آئی تھی۔ وہ عجلت میں گھر سے باہر نکلنے لگی جب اماں نے آواز دے کر کہا، زوہا بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی، اگر میں رکی تو لیٹ ہو جاؤں گی، ابا کی دکان سے جاتے وقت ایک بسکٹ لے لوں گی، اس نے جلدی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ حیدر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، زوہا حیدر اور تائشہ حیدر۔ ان کی راشن ڈپو کی دکان تھی۔ اپنے خاندان میں وہ سب سے غریب تھے کیونکہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، جبکہ ان کے بہن بھائی اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ حیدر صاحب نے ساری زندگی حلال کمایا تھا۔ وہ پیسے کی ریس میں دوڑ کر حلال حرام کا فرق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسا ان کے بہن بھائیوں نے کیا۔ حیدر صاحب سب سے بڑے تھے اور ان سے چھوٹے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ان سب نے حیدر صاحب سے تعلق بس سلام دعا کی حد تک رکھا تھا، کیونکہ امیر لوگ غریب لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ زوہا اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی تھی، اس لیے خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور اب نوکری کے لیے دھکے کھا رہی تھی، جبکہ تائشہ ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 1 ماہ پہلے زوہا کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے طے ہوئی تھی۔ ان کے درمیان محبت نہیں تھی، بس ماں باپ کی رضامندی میں زوہا اور ہارون راضی ہو گئے۔ ہارون پرائیویٹ کالج میں پروفیسر تھا اور اس کا تعلق بھی متوسط طبقے سے ہی تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی بابا کے سپر سٹور پر آئی، انہیں بتا کر ایک بسکٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ان کی دعاؤں کے ساتھ انٹرویو کے لیے چل دی۔ میڈم ابھی آپ یہاں ویٹ کریں، ایک ادھیر عمر آدمی نے اسے باہر لان میں بٹھا دیا، جہاں اور بھی امیدوار بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ بڑے گیٹ سے ایک پتھروں کی راہداری گھر کی مین انٹرنس کی طرف جا رہی تھی۔ راہداری کے دونوں طرف بڑے بڑے لان تھے، اونچی اونچی کھڑکیوں والا یہ گھر جو قدیم اور جدید طرز پر بنایا گیا تھا بے حد حسین تھا۔ گھر کی فرنٹ کی دیوار پر بلیک پتھر کی پلیٹ پر گولڈن رنگ سے شاہ مینشن لکھا گیا تھا۔ مس حیدر آپ آ جائیں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ زوہا یکدم چونکی اور اس آدمی کی رہنمائی میں گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی۔ زوہا نے انہیں فوراً سلام کیا۔ انہوں نے چشموں کے پیچھے سے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ ان کے لہجے پر چونکی اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زوہا حیدر۔ کتنا ایکسپیرینس ہے تمہارا؟ اماں جی نے سوال کیا۔ اماں میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہمت ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں گی تو میں آپ کی صرف تھراپسٹ نہیں بنوں گی، بلکہ آپ کی اولاد کی طرح آپ کی خدمت کروں گی، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ زوہا نے تفصیل سے جواب دیا، ہر بار ایک ہی جواب دے کر کہ سر آپ موقع دیں گے تو اسے ایکسپیرینس آئے گا، وہ ہمیشہ ریجیکٹ ہوتی آئی تھی۔ اس بار اس نے جواب بدل کر قسمت آزمانے کا سوچا، اور در حقیقت وہ چاہتی تھی کہ انسانیت کی خدمت کرے۔ اماں نے ایک بار پھر چونک کر چشموں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ تنخواہ کیا لوگی؟ اماں نے سوال کیا۔
जो आप प्यार से देंगी मैं ले लूंगी। जोहा ने फिर मध्यम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कल सुबह 9 बजे आ जाना, 3 दिन तुम्हारा ट्रायल है, फिर सैलरी बता दूंगी। अम्मा ने कहा तो जोहा के चेहरे की मध्यम मुस्कुराहट इत्मीनान भरी मुस्कुराहट में तब्दील हो गई। थैंक यू अम्मा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, जोहा ने कहा और खुदाफिज कहकर बाहर निकल गई। अम्मा बस दुआ कीजिएगा मेरी जॉब परमानेंट हो जाए, जोहा ने अम्मा को कहा। एक पल के लिए भी आज तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग नहीं हुई थी। हाँ बेटे, तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा, अम्मा ने उसके माथे पर बोसा दिया। आमीन, जोहा ने दिल से कहा और चाय पीने लगी। आज जोहा ने सफ़ेद कैपरी के साथ लेमन शर्ट पहनी थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर टिकाकर वो अपनी जॉब के लिए घर से निकल पड़ी। अस्सलामुअलैकुम चचा, गेट पर चौकीदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ड्राइंग रूम में वेट कर लें, अम्मा जी वहीं पर आ जाएंगी, चौकीदार ने शफकत से जोहा को जवाब दिया। वो सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अभी वो पत्थरों की राहदारी से गुजर रही थी कि किसी ने उसे पुकारा। ए, किधर जा रही हो? जोहा ने पलट कर देखा। सामने एक हैंडसम सा नौजवान जिम किट में खड़ा सख्त तेवरों से उसे घूर रहा था। जोहा समझी ये कोई मुलाजिम है, जैसे कल बहुत से जेंट्स मुलाजमीन इस घर में काम काज करते फिर रहे थे। तुम्हें क्यों बताऊं? जोहा ने तड़क कर जवाब दिया। तमीज से बात करो, जावियान शाह ने गुर्रा कर कहा। जोहा ने भी गुस्से से उसे देखा। आज जुमेरात का दिन था। हर हफ्ते आज के दिन दादी जान सदका खैरात करती थी, तो अक्सर उनके घर में आज के दिन बहुत रश लगा रहता था। जावियान समझा था जोहा भी इसी सिलसिले में हाजिर हुई है। दादी जान, चैरिटी 10 बजे के बाद शुरू करेगी, तब तक तुम वहाँ इस हट में इंतज़ार करो, जावियान ने सर्द लहजे में कहा। ए मिस्टर, अपनी लिमिट में रहो, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, अम्मा की नई थेरेपिस्ट हूँ। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत उनसे कर दी ना तो वो तुम्हें फ़ौरन नौकरी से निकाल देंगी। जोहा ने फ़ौरन हिसाब बेबाक किया था। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, ये मेरा घर है, सैयद जावियान शाह का, जावियान ने गुस्से से कहा। ओह, जोहा कुछ शर्मिंदा हुई लेकिन फ़ौरन ख़ुद को कंपोज किया। इस बदतमीज़ शख्स ने भी तो उसके साथ बदतमीज़ी की थी, फिर मैं शर्मिंदा क्यों हूँ? जोहा ने मुंह मोड़ लिया और घर के अंदर की तरफ चल दी। इस घर में जॉब करनी है तो ज़बान को बंद रखना पड़ेगा, वरना अभी के अभी तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। जावियान की आवाज़ पर जोहा एक लम्हे के लिए रुकी और फिर फ़ौरन आगे बढ़ गई। ये जॉब उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। जफ़र बेटा, ड्राइंग रूम में जो डॉक्टर बैठी है उसे अभी बुला लाओ, दादी जान ने जफ़र मुलाजिम से कहा जो टेबल सेट कर रहा था। क्या ज़रूरत है दादो, ये हमारा पर्सनल टाइम है, वो यहाँ जॉब करती है, तो अगर कुछ देर वो मालिक का इंतज़ार भी कर लेगी तो कोई हर्ज नहीं, जावियान ने दादो को कहा। बुरी बात बेटे, ये हमारी गलती है कि हम आज देर से नाश्ता कर रहे हैं, इसमें उस बच्ची का क्या कसूर, वो हमारा इंतज़ार क्यों करे? जाओ जफ़र, जोहा को बुलाओ, दादो ने उसे समझाया। कुछ लम्हों बाद झिझकती हुई जोहा हाजिर थी। जोहा ने झट उन्हें सलाम किया। जी मैम, आपने बुलाया? जोहा ने सवाल किया। अरे बेटा, ये मैम क्यों कह रही हो? कल जितने प्यार से अम्मा जी कह रही थी तुम, आज दादो जी कह लो, लेकिन ये मुझे मैम मत कहो, दादी अम्मा ने जोहा को प्यार से टोका। आज भी ये सर पर दुपट्टा लिए लड़की बहुत अच्छी लगी थी। सॉरी दादो, जोहा ने फरमाबरदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माँ सदके, कितनी अच्छी बच्ची है ये, दादो ने मोहब्बत से कहा। जोहा उनके अंदाज पर चौंकी थी। कल वाली सख्ती अब उनके चेहरे पर नहीं थी। दादो की मोहब्बत पर जावियान जल भुन गया। तभी मुंह बनाकर प्लेट की तरफ मुतवज्जो हुआ। आओ बेटे, हमारे साथ नाश्ता करो, दादो ने लाड से कहा। शुक्रिया दादो, लेकिन मैं नाश्ता करके आई हूँ, जोहा ने रिसान से कहा। कल से तुम मेरे साथ नाश्ता करना, दादो ने प्यार भरी नजरें उस पर जमाई और जावियान शाह ने हैरत से दादो को देखा।
یہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا، وہ تو بہت ریزرو رہتی تھی، کسی سے بھی جلدی گھلتی ملتی نہیں تھی۔ دادو آپ پلیز یہ پراٹھا مت کھائیں، آپ یہ بریڈ لیں اور اس پر ہلکا سا مکھن لگا لیں، یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ زوہا نے دادو کو پراٹھا کھاتے دیکھا تو کہا، ارے ڈاکٹر نے تو مجھ بوڑھی کا مکھن بند کیا ہوا ہے۔ دادو نے کہا، میں آپ کی ایکسرسائز ایسی کراؤں گی کہ یہ مکھن آپ ہضم کر لیں گی، لیکن پراٹھا مت کھائیں، کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ زوہا نے ادب سے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، تم یہاں بیٹھو اور چائے پیو۔ دادو نے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھا لیا۔ دادو ہیڈ سیٹ پر تھی، سیدھے والی کرسی پر زاویان شاہ تھا، جبکہ الٹے ہاتھ والی کرسی پر زوہا۔ زوہا کے آگے ظفر نے چائے کا کپ رکھا اور خود سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ دادو سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہیں اور زاویان ان کے مزاج کی تبدیلی پر حیران تھا۔ بس میرے بچے، اب میں تھک گئی ہوں، دادو نے زوہا کو کہا جو ان کی ٹانگوں کی ایکسرسائز کروا رہی تھی۔ بس دادو 5 منٹ اور پھر آج کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، زوہا نے نرمی سے کہا اور ان کی سیدھی ٹانگ کو حرکت دینے لگی۔ دادو امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے چھٹی چاہیے، انہیں چھوٹا بھائی گاؤں سے شہر لے کر آ رہا ہے۔ ظفر نے دادو سے کہا، او ہو جاؤ بچے، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ دادو نے 5000 کے کچھ نوٹ ظفر کو دے دیے۔ شکریہ دادو، لیکن آج کا کھانا نہیں بنا، ظفر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں زاویان کو کہہ دیتی ہوں، وہ باہر سے کچھ لے آئے گا، تم اپنی ماں کے پاس اسپتال چلے جاؤ۔ لیکن آپ کو تو باہر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے دادو، مجھے بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ میں بنا دیتا ہوں، ظفر نے جلدی سے کہا۔ آپ جائیں ظفر بھائی، میں دادو کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، زوہا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے یہاں کام کرتے 15 دن ہو گئے تھے، روز وہ دادو کے ساتھ چائے پیتی، ناشتہ وہ گھر سے ہی کر آتی تھی، پھر دادو کی ایکسرسائز کراتی۔ ان 15 دنوں میں اس کی دادو اور ظفر کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ظفر 17 سال کا نوجوان تھا جو زوہا کو باجی کہتا تھا۔ ان 15 دنوں میں اس کی ملاقات زاویان سے نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی۔ جب وہ ناشتے کی میز پر آتی، زاویان اس وقت ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا ہوتا۔ وہ 2 بجے تک دادو کے پاس رہتی اور تب تک زاویان گھر نہیں آتا تھا۔ دادو کا اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا، اب تو وہ دونوں دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھاتی۔ تو بتائیں جناب، آج ہماری پیاری سی دادو کیا کھائیں گی؟ زوہا نے لاڈ سے دادو سے پوچھا۔ آلو بینگن بنانے آتے ہیں تمہیں؟ دادو نے سوال کیا۔ بالکل، زوہا نے فخریہ کہا۔ تو پھر بناؤ اور کھلاؤ، دادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں آپ پھر نماز پڑھیں، میں اتنے میں کھانا بناتی ہوں، پھر کھانا کھا کر میں نماز ادا کر لوں گی۔ زوہا ان کی ویل چیئر گھسیٹ کر کمرے تک لائی، دادو کو وضو کرایا اور جب انہیں نماز کی نیت باندھ لی تو وہ کچن میں آ گئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زاویان کی آواز پر زوہا ڈری تھی اور ہاتھ میں موجود پلیٹ اس کے پاؤں پر گری، کانچ کی پلیٹ اس کے پاؤں کو زخمی کر گئی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کو ڈراتے نہیں ہیں؟ زوہا نے درد ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سوال پوچھنے پر بھی اگر آپ لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا ہے تو حیرت ہے، زاویان نے بھی طنز کیا۔ زوہا نے بھی کڑے تیوروں سے اسے گھورا اور رخ برنر کی طرف کر لیا۔ ویسے یہ زحمت آپ کیوں کر رہی ہیں؟ زاویان نے پانی کی بوتل فریج سے نکالی۔ ظفر بھائی کی امی کی طبیعت ناساز ہے تو وہ چھٹی پر گئے ہیں، زوہا نے روبوٹ کی طرح جواب دیا۔ مس زوہا، آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بہت انٹرفیئر کرنے لگی ہیں، آپ کو ایک تھیراپسٹ کی حیثیت سے رکھا گیا ہے تو بہتر ہے آپ صرف وہی کام کریں۔ خواہ دادو کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بعد میں آپ انہیں چھوڑ جائیں گی اور مجھے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے آپ ان کے دل کے ساتھ مت کھیلیں، زاویہ نے سرد انداز میں کہا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ دادو کے ساتھ میں چیٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زوہا کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ آپ خواہ دادو سے اتنا اٹیچ کیوں ہو رہی ہیں؟
انہیں غلط فہمیوں کا شکار کیوں کر رہی ہیں؟ زاویہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا۔ انداز پرسکون تھا، جیسے اس معاملے کو آج ختم کرنا چاہتا ہو۔ میں ان کی عزت کرتی ہوں، زوہا نے تڑک کر کہا۔ غلط، میں اچھے سے جانتا ہوں آپ جیسی لڑکیوں کو۔ پہلے بھی آپ جیسی بہت سی تھراپسٹ لڑکیاں اس گھر میں آئی ہیں۔ دادوں سے دوستی کر کے وہ مجھے اپروچ کرتی ہیں کہ میں کسی طرح ان سے شادی کر لوں، اور جب وہ کامیاب نہیں ہوتی تو دادوں کو چھوڑ کر جاتی ہیں۔ بعد میں دادوں ان کی جدائی کا غم لے کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ زاویہ نے اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ آپ انتہائی گھٹیا اور بد تہذیب انسان ہیں۔ آپ جیسے 2 کوڑی کے آدمی کی طرف میں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ سنا آپ نے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں منگنی شدہ ہوں۔ زوہا نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زوہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ اور ہاں، اگر دادو پوچھیں کہ میں کیوں بنا بتائے چلی گئی تو اپنے نادر خیالات ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ زوہا نے چہرے پر لڑکتے آنسو رگڑے اور باہر چل دی۔ زاویان کو اس کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے سوا سب کی غلطی نظر آتی ہے، اور زاویان کو بھی یہی لگا تھا کہ زوہا نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ پتہ نہیں آج زوہا کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ کل بھی بغیر بتائے چلی گئی تھی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دادو کی پریشان آواز پر زاویان شاہ چونکا تھا۔ اس نے موبائل سائیڈ میں رکھا اور دادو کی طرف دیکھا۔ دادو، آپ نے اس بار اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان، اس بار میں ڈاکٹر کے ساتھ دل کا تعلق نہیں بناؤں گی، بس ڈاکٹر اور پیشنٹ والا رکھوں گی۔ لیکن ایک بار پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے دوستی کر بیٹھی ہیں، اور اگر وہ بھی آپ کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو دھوکہ دے گئی تو؟ زاویہ نے ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ زاویان، فضول نہ بولا کرو۔ زوہا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ بڑی اچھی تربیت کی ہے اس کے ماں باپ نے۔ سر سے تو دوپٹہ نہیں اترتا میری بچی کا۔ باقی پچھلی نوکرانیاں تو پینٹ شرٹ میں آتی تھیں۔ اس کی تربیت کی وجہ سے ہی تو بے لوث ہو کر کل میری فرمائش پر آلو بینگن بنا رہی تھی وہ۔ زوہا کا ذکر کرتے دادو کے انداز میں شفقت تھی۔ لیکن دادو، زاویان ابھی کچھ بولتا کہ السلام علیکم دادو زوہا کے سلام پر چونکا۔ یہ ڈھیٹ لڑکی پھر سے آ گئی تھی۔ باقیوں سے مختلف تو زوہا زاویان کے لیے ثابت ہوئی تھی۔ زاویان کے ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹرنیاں واپس نہیں آتی تھیں، اور زوہا واپس آ گئی تھی۔ آجا میری بچی، تیرے بغیر تو میں اداس ہو گئی تھی۔ دادو نے لاڈ سے اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں میں سما گئی۔ کھانا کیسا لگا کل آپ کو؟ زوہا نے ان سے الگ ہوتے پوچھا۔ وہ زاویان کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ بہت مزے کا، میں نے تو اپنی بیٹی کا تحفہ بھی نکالا ہوا ہے، دادو نے مسکرا کر کہا، اور اپنے ہاتھ سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر زوہا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ ارے دادو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زوہا یکدم پریشان ہو گئی۔ میرے چاند، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور میں بڑی محبت سے تمہیں دے رہی ہوں۔ دادو نے پیار سے اس کے ہاتھ دبائے، اور زاویان کو دادو کی حرکت نے ایک مرتبہ پھر حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ تو کہتی تھی، زاویان میری ساری جیولری تیری بیوی کے نام ہے، میرے بعد یہ انگوٹھیاں، یہ چین، یہ نیکلس تیری بیوی پہنا کرے گی۔ کافی مہنگے آلو بیگن پڑ گئے ہیں ہمیں تو، زاویان نے دادو کی طرف دیکھتے کہا۔ بات پیار اور خلوص کی ہے زاویان۔ دادو نے گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ زوہا، یہ کون ہے؟ دادو نے اس کے بابا کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا انداز کچھ حیران کن تھا۔ یہ بابا ہیں دادو، اور یہ امی۔ زوہا آج انہیں اپنی فیملی پکس دکھا رہی تھی۔ آج کل دادو کی طبیعت کچھ خراب تھی، ہارٹ پیشنٹ تھی، تو آج کل ذرا سی ایکسرسائز پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ زوہا کو یہاں کام کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے، اور دادو سے دوستی بھی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ دادو نے جب اس کو سیلری دی تو اس نے منع کر دیا کہ دادو، میں آپ کو اپنی دادی سمجھنے لگی ہوں، اور اپنوں کی خدمت کے پیسے نہیں لیے جاتے۔
और दादो निहाल हो गई थी। फिर भी ज़बरदस्ती 1 लाख का चेक उसे थमा दिया था और वो इतनी सैलरी देकर हैरान हो गई थी। उसने दादो को बहुत इनकार किया, लेकिन दादो ना मानी और जोहा को हार माननी पड़ी। नाम क्या है इनका? दादो की आवाज़ पुरजोश थी। हैदर सलीम, जोहा ने उन्हें बताया, लेकिन उनकी खुशी की वजह ना जान सकी। आजकल वो रोज़ दादो के पास आती, एक्सरसाइज तो ना कराती लेकिन बातें ज़रूर करती। आज भी वो दोनों यही कर रही थी जब जोहा ने उन्हें तस्वीरें दिखाई। जोहा के वालिद का नाम सुनकर दादो के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दादो, अब मैं चलती हूँ, आज खाला ने आना है हमारी तरफ, जोहा ने जूता पहनते कहा। हाँ जाओ, ड्राइवर बाहर ही होगा। दादो के हुक्म पर अब जोया गाड़ी में आती जाती थी। अल्लाह हाफिज। जोहा ने उनके गाल पर प्यार किया तो दादो ने नम आंखों से उसे देखा। उन्हें अब समझ आई थी कि जोहा उन्हें अपनी अपनी क्यों लगती थी। उन्होंने जोहा के माथे पर बोसा दिया और फिर उसके हाथ थाम लिए। जहां उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में जोहा ने कोई और अंगूठी पहनी हुई थी और सीधे हाथ की शहादत की उंगली में दादो की रिंग। दादो ने लाड से उसकी मंगनी की अंगूठी उतारी। वह भी नहीं जानती थी कि जोहा मंगनी शुदा है। कभी मौका ही ना मिला। आज भी जोहा उन्हें हारून की तस्वीर ना दिखा सकी। दादो ने अंगूठियों की जगह तब्दील की और जोहा ये सब हैरत से देखती रही। अब तरतीब यूं थी कि रिंग फिंगर में उसकी मंगनी की अंगूठी की जगह दादो की दी अंगूठी थी। दादो ने उसके हाथ पर बोसा दिया। आज मैंने अपना अहद पूरा किया। दादो ने सरगोशी की और जोहा उनकी बात का मतलब ना समझ सकी। जाओ मेरी बच्ची, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। दादो की आंखों में आज कुछ अलग था। जोहा कंफ्यूज सी बाहर आ गई। डॉक्टर, दादो को क्या हुआ है? जावियान इस वक्त कार्डियोलॉजी में था। शाम में दादो की तबीयत बिगड़ गई थी और वो उन्हें लिए यहाँ आ गया था। माँ बाप की मौत के बाद दादो ही उसका वाहिद सहारा थी। परेशानी और डर उस वक्त जावियान के चेहरे पर वाज़ेह था। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक हुआ है जावियान, तुम उनसे मिल लो, वो इस वक्त होश में है, डॉक्टर ने कहा और वो दादो की तरफ बढ़ा। दादो को 5 घंटे बाद अब होश आया था। दादो, ये क्या कर लिया यार? जावियान ने रुहासे होकर कहा। जावियान, मेरी बात सुनो। दादो ने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। जोहा, कम ऑन दादो, अभी सिर्फ अपनी और मेरी बात करें। जावियान ने उनका हाथ थाम कर कहा। जावियान, जोहा से शादी कर लो, दादो ने बमुश्किल कहा और जावियान के सर पर अस्पताल की छत जैसे गिर गई। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटे। तुम वादा करो, जोहा से ही शादी करोगे। मेरे सर पर हाथ रखो। जावियान, उनकी बातों पर वो हैरान ही तो रह गया था। दादो, आप ठीक हो जाएंगी, हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, जावियान ने रिसान से कहा। दादो ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उनकी तबीयत बिगड़ते देखकर जावियान ने कसम खाई कि वो जोहा से ही शादी करेगा। मेरे लॉकर में तुम्हारे लिए कुछ रखा है जावियान, मेरे जाने के बाद उसे ज़रूर पढ़ना। दादो ने बमुश्किल बात पूरी की थी। अब उन्हें सांस नहीं आ रहा था। जावियान डॉक्टर्स को ले आया और जिस बात का डर था वही हुआ। फजर के वक्त दादो अपने खाले के हकीकी से जा मिली। जोहा को ड्राइवर ने नहीं बताया कि दादो का इंतकाल हो गया है। रोज़ की तरह वो जोहा को लेने आया और जोहा शाह मेंशन आ गई। लेकिन घर के दरवाजे खुले देखकर जोहा के दिल को कुछ हुआ। लोगों की गहमा गहमी ने उसके दिल में बेचैनियां भर दी। फिर वो कांपते कदमों से अंदर आई। अजनबी चेहरे। वो लॉन्च में आई तो लगा जैसे आज उसका कोई अपना उससे बिछड़ गया हो। उसकी दोस्त, उसका 3 माह का साथी। सामने दादो आंखें मूंदे लेटी हुई थी। घर लोगों से भरा पड़ा था। सामने जावियान दादो की चारपाई के पास बैठा था, आंखें सूजी हुई थी। जोहा की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए और फिर 1 मिनट के लिए भी ना रुके। वो दादो की चारपाई के पास बैठकर
बिलक बिलक कर रो दी और जावियान ने एक नज़र उसे देखा। इस वक्त वो 2 ही लोग थे जो रो रहे थे, एक जोहा और दूसरा जावियान। बाकी सब तो मशीनी चेहरों के साथ बैठे थे। लोगों ने हैरत से जोहा को देखा, उसमें उसके अपने ददियाल वाले भी शामिल थे। दादो को फौत हुए 1 हफ्ता हो गया था। अम्मी अब्बू भी दादो की फौतगी में शामिल हुए थे, और अगर वो तवज्जो देती तो पता लगता कि सारा ददियाल ही दादो की फौतगी में शामिल हुआ था। इन 3 माह में दादो के साथ होने वाली अटैचमेंट ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसे लगता था जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। आह दादो, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो गई थी। एक आंसू फिर से उसके गाल पर बह गया। 2 माह बाद उसकी शादी होना तय पाई थी। अम्मी भी उसे दादो के गम से निकालने के लिए हर वक्त किसी न किसी काम में उलझाए रखती, लेकिन दादो की याद हर पल साथ थी। जफर, ये किसकी शादी का कार्ड है? जावियान ने पूछा। सर, वो आज जोहाबाजी दे गई थी। ये मेरा है और ये आपका और दादो का। जफर एकदम खामोश हो गया था। जावियान ने बोझल दिल के साथ उसे देखा और फिर कार्ड खोला। सामने जोहा की शादी का कार्ड पढ़कर जावियान को दादो से किया अहद याद आया तो एकदम जोहा पर गुस्सा बढ़ गया। कैसी मतलब परस्त लड़की थी। दादो की ज़िंदगी में उन्हें फंसाकर उन्हें कन्वेंस करके कि उसकी शादी जावियान से हो जाए, अब अपने पुराने आशिक से शादी करने जा रही है। उसने शादी की डेट पढ़ी, कल जोहा की शादी थी। जावियान ने सोच लिया था उसे क्या करना है। हारून कहीं चला गया है। वो 4 बजे घर से निकला था अपना जूता खरीदने, अब तक नहीं आया। खाला ने अम्मी को फ़ोन करके बताया। वो जो हॉल में बारात आने का इंतज़ार कर रहे थे, एकदम परेशानी की लहर दौड़ उठी। हैदर साहब के कंधे झुक गए। ख़ानदान भर के लोग अब चैमगोइयों में मसरूफ़ हो गए थे और ख़ुद साख्ता बनाए गए माहौल का जावियान ने भरपूर फ़ायदा उठाकर हैदर साहब के सामने अपना प्रपोज़ल पेश किया, जिसके बाद उनका फ़ौरन निकाह कर दिया गया। जोहा ने इनकार किया, लेकिन अपने वालिद के जुड़े हाथों की वो लाज रख गई थी। ख़ानदान वाले जोहा की इतने बड़े घर में शादी होने पर खुश नहीं थे। अब तो हैदर साहब का स्टेटस भी बढ़ गया था। रुखसती के वक्त वो बहुत रोई थी और अम्मा अब्बा की दुआओं के साए में जावियान की हमसफ़र बन गई थी। गाड़ी मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जावियान गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ा। जोहा वहीं की वहीं गाड़ी में बैठी रह गई। जावियान की इस हरकत पर उसका दिल दुखा था। कुछ भी था, जावियान में इतनी अखलाकियात तो होनी चाहिए थी ना। वो भारी दिल के साथ घर में दाखिल हुई। इस घर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थी और जावियान के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल दुख से बोझल था। उसे अपनी इंसल्ट फील हो रही थी कि एक नई नवेली दुल्हन खुद चलकर दुल्हा के कमरे में जा रही थी बगैर बुलावे के। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जावियान कमरे में नहीं था, अलबत्ता पूरा कमरा रोशनियों में डूबा हुआ था। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे आगे के सफ़र अब जावियान को तय करना था। उसने ये फ़ैसला कर लिया था वो खुद से हरगिज़ बेड पर नहीं जाकर बैठेगी। जावियान फ्रेश सा वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वो एक ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट में था। गीले बालों को जेल से सेट किया, खुद पर जी भरकर परफ्यूम किया और उसकी तरफ मुड़ा। जोहा सर झुकाए बैठी थी। शीशे से भी जावियान उसके अक्स को देख रहा था, लेकिन अब मंजर बिल्कुल वाज़ेह था। सामने जोहा थी और इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी नथ के थरथराते मोती और खौफ से कांपती पलकें जावियान को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी, लेकिन वो हरगिज़ भी इस लड़की पर दिल हार नहीं सकता था। इस लड़की की चालाकी याद आई तो जावियान के तेवर सख्त हो गए। उसने दादो को कैसे अपने जाल में फंसाया था। न जाने उनसे कितने वादे लिए थे, जो दादो आखिरी वक्त में भी इसी की फ़िक्र में बेहाल हो रही थी। और जब दादो फौत हो गई और इस लड़की के तमाम रास्ते बंद हो गए तो उसने अपने पुराने आशिक पर ही तकिया कर लिया। 2 नंबर लड़की।
जावियान की सोचों में भी जोहा के नाम की नफरत थी। तो आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गई। जावियान की बात पर जोहा ने नजरें उठाई थी। बड़ी बड़ी बादामी आंखें इस वक्त बोझल थी। देखो जोहा, तुम्हारी कोशिश रायगा नहीं गई। तुमने जिस चीज़ के लिए जिद्दोजहद की वो आज तुम्हारी हो ही गई। जावियान उसके साथ सोफे पर बैठा था और एक झटके से उसे अपने करीब किया। जोहा उसके सीने पर गिरी थी। क्या मतलब है इस बात का? जोहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। ओहो, भोली बनने की अदाकारा। गुड। जोहान ने एक झटके से उसकी नथ उसकी नाक से जुदा की। बेसाख्ता जोहा की चीख निकली। अब नाक पर नन्ही नन्ही खून की बूंदें नमूदार हो रही थी। तुमने दादी जान को अपने जाल में फंसाया, उनसे मोहब्बत का ड्रामा किया, उन्हें फोर्स किया कि मैं जावियान शाह तुमसे शादी करूं। जब इतनी बड़ी गेम खेल ही ली थी तो मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? दादी जान के फौत होने के 2 माह बाद ही अपने पुराने आशिक से शादी क्यों रचाने बैठ गई? जोहा जान, जावियान ने तनफ्फुर से कहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जोहा ने आंसू बेदर्दी से साफ करते कहा। जोहान गुस्से से उस पर झुका और अपना गुस्सा उस पर निकालने लगा। एकदम से वो जोहा से अलग हुआ। खून की नन्ही बूंदें अब जोहा के होंठों पर वाज़िहा थी। जोहा की आंखों में बेबसी के आंसू थे। गुस्सा भी जोहा के चेहरे पर वाज़िहा था। अगर आइंदा इन होठों ने मुझसे बदतमीज़ी करने की जसारत की तो याद रखना जोहा, मैं इन्हें ऐसा शहीद करूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जावियान गुर्राया। जोहा उसके लहजे, आंखों और हाथों की सख्ती से डर गई थी। कपड़े चेंज करो, पहले ही मुझे तुमसे नफरत है और इन कपड़ों में तुम जहर लग रही हो। एक और तीर जावियान की तरफ से चला था। मैं चाहे तुमसे कितनी ही नफरत क्यों ना करूं, तुम पर किसी और की छाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये कपड़े और ज्वेलरी तो उस कमीने हारून के नाम के हैं। जारून ने उसको बालों से पकड़कर जोहा का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। मैंने दादी जान से कभी ऐसी कोई बात नहीं की, मेरा यकीन करें। जोहा ने नम आंखों से उसकी आंखों में देखते कहा। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरों पर पड़ रही थी। यकीन यही तो नहीं है मुझे तुम पर। एक दफ़ा जब मैंने तुम्हें वार्न कर दिया था, खुद इनकार कर दिया था कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों दोबारा मेरे घर आई? जावियान ने सख्त नज़रों से पूछा। आप मुझे छोड़ दें, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। शायद आपको यकीन आ जाए कि मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जोहा की बात पर जावियान के माथे के बलों में इजाफा हुआ। तुम जैसी तो कोई दुल्हन ना होगी जो शादी की पहली ही रात तलाक का मुतालबा करे। बोलो झूठ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं भी साबित करके ही रहूँगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जावियान ने तंजिया कहा। जोहा उसे धक्का देकर पीछे हुई। आप गलत फहमियों का शिकार हैं। सुना आपने, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। जोहा रोते रोते चीखी थी। आवाज़ नीची रखो जोहा, अब तुम मेरी बीवी हो और इस घर में तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। कुछ भी है, मुझे यकीन है तुम अपने बाप की इज़्ज़त मज़ीद ख़राब नहीं होने दोगी। मैंने अगर तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दिया तो तुम्हारा बाप तो जीते जी मर जाएगा। इसलिए अपने मिजाज को नीचे लाओ और अपनी मोहब्बत का मुझसे पल पल इजहार करो और कोशिश करो कि मैं तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊं, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जावियान ने एक लम्हे में उसे उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल दिखाया था। जाओ चेंज करके आओ, मेरी कोई शर्ट और ट्राउज़र पहन लो, लेकिन इन कपड़ों में मुझे दोबारा नज़र मत आना। जावियान का लहजा सख्त था। जोहा बेजान कदमों से उठी। उसकी किसी बात पर तो जावियान को यकीन नहीं आ रहा था। वो क्या करती? फिलहाल सोचने समझने की सारी सलाहियतें ख़त्म हो गई थीं। जोहा फ्रेश हुई। जब उसने अपनी तपती आंखों पर पानी डाला तो कितने बेनाम आंसू गालों पर लुढ़क गए। क्या कर दिया दादी जान आपने? वो सिसकी थी। जावियान की ब्लैक टी शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी और ट्राउज़र को पाउंचों से फोल्ड करके उसने बालों का जोड़ा बनाया था। ब्राइडल ड्रेस का दुपट्टा सर पर लेकर वो बाहर आई थी।
जावियान मोबाइल पर मसरूफ था। एक नज़र उसे देखा तो नज़र पलटना भूल गई। वो नाजुक सी लड़की उसके बड़े से कपड़ों में कहीं गुम हो गई थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जावियान के दिल की धड़कन तेज़ हुई। उसने खुद को संभाला और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। एक झटके से उसके वजूद से दुपट्टा अलग किया। कहा था ना मुझे किसी की छाप तुम पर नजर ना आए, जावियान ने सख्त लहजे में कहा। पहली बार वो दुपट्टे के बगैर उसके सामने थी। रोशनी बिखेरती जोहा की गर्दन उसे दावत दे रही थी और जावियान ने उस दावत को खुले दिल से कबूल किया था। जावियान ने अपने अंगूठे से उसकी जॉ लाइन का सुराग लगाया। वो उसकी आंखों में घबराहट की झिलमिलाहट देख सकता था। ये थी उनके सफ़र की इंतहा, किसी नई और नामालूम चीज़ की दहलीज। मैं, जोहा ने बोलना चाहा, फिर रुक गई, जैसे सही अल्फाज की तलाश में हो, और जावियान ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। हर तरफ खामोशी छा गई थी, क्योंकि वो जावियान के आगे बेबस हो गई थी। वो इस वक्त ठंडे फर्श पर बैठी थी। जावियान ने अपना मतलब पूरा करके उसे कहा था, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, वरना तुम्हारी जगह इस फर्श पर है या इस सोफ़े पर। तुम्हें मैं यहाँ तब तक जगह नहीं दूँगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। जिंदगी ने यकदम इतने मोड़ लिए थे कि वो इस सफ़र से हाँफ गई थी। ऐसा लग रहा था इस मुसाफत की कोई मंजिल ना हो। उसने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया था कि जावियान समझता कि जोहा उसके इश्क में पागल है। दादी जान ने जावियान को ऐसा क्या कहा था जो उनके दरमियान नफ़रत इतनी बढ़ गई थी। वो पहले दिन से एक दूसरे के मुखालिफ थे। फिर जावियान को किस चीज़ ने उसकी तरफ से मज़ीद गुमराह किया था। सोचों का एक लामुतनाही सिलसिला था और जोहा थी। वो सोफे पर बैठी जावियान के उठने का इंतज़ार कर रही थी। 9 बज रहे थे और कुछ ही देर में उसके घर वालों ने नाश्ता लेकर आ जाना था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। उसने एक बार फिर बेचैनी से पहलू बदला। अगर जावियान उसे नफ़रत का दावेदार था तो जोहा भी जावियान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन माँ बाप को बताने का सोच कर ही उसके पाँव बेजान हो जाते थे। कल क्या कम बेइज्जती हुई थी जो वो अपने माँ बाप के लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी कर देती। जोहा ने नम आंखों को बेदर्दी से रगड़ा। उसे बहादुरी से सारी सिचुएशन का मुकाबला करना था। वो धीमे कदमों से बेड तक आई और जावियान का कंधा हिलाया। जावियान ने उसका हाथ थामा और झटका देकर पास गिरा लिया। इजहारे मोहब्बत करने आई हो? जावियान ने बंद आंखों से सवाल किया। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती जावियान शाह, बेहतर है आप अपनी गलत फहमी को दूर कर लें, जोहा ने सुलग कर कहा। जावियान ने एक आंख खोलकर उसे देखा। अगर इजहार नहीं करना था तो यहाँ मेरे बिस्तर पर क्या लेने आई थी? जावियान ने भारी आवाज़ में पूछा। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले होंगे, जोहा ने मध्यम आवाज़ में कहा, क्योंकि अब जावियान ने उसे अपने करीब कर लिया था। आ जाएंगे कपड़े थोड़ी देर तक। जावियान ने फिर से आंखें बंद की। जोहा ने उठना चाहा। जावियान ने घूर कर उसे देखा। मैं घर आए मेहमानों को खाली हाथ नहीं लौटाता, जावियान ने कहा और जोहा की गर्दन पर झुका। वो इस वक्त ग्रीन कामदार शॉर्ट फ्रॉक और प्लाजो में थी। मेकअप और भारी सी ज्वेलरी सेट पहने वो अप्सरा लग रही थी। कुछ देर पहले एक लड़की आई थी जो उसकी ज़रूरत का हर सामान लाई थी। वो जावियान के दोस्त की बीवी थी, फैशन डिज़ाइनर थी और उसी ने जोहा को तैयार किया था। जोहा ने दुपट्टा सर पर टिकाया तो वो लड़की झुंझला कर बोली, भाई प्लीज़ अपनी लुक ख़राब ना करें। जब जोहा ना मानी तो वो जावियान को कमरे में भेजकर खुद चली गई। उसकी एक मीटिंग थी और वो बड़े शॉर्ट टाइम में सिर्फ जावियान शाह के बुलावे पर आ गई थी। जुनेद और मैं शाम में फारिग होकर आएंगे। ये जो आपने सरप्राइज़ दिया है ना जावियान भाई, बहुत खूबसूरत है। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो हम आज सारा दिन आपके साथ गुजारते, मदीहा भाभी ने कहा और जावियान से मिलकर वो लोग चले गए। जावियान कमरे में दाखिल हुआ तो जोहा को देखकर चौंक गया।
वो नाजुक सी लड़की हर रूप में तूफान बर्पा करने की सलाहियत रखती थी। उसकी नाजुक सी गर्दन जो कल से जावियान को बहुत पसंद आ रही थी, इस वक्त भारी ज्वेलरी सेट के बोझ में थी। पंखड़ी लब लिपस्टिक से सजे थे और बादामी आंखें इस वक्त झुंझुलाहट का शिकार थी। भारी आवेज़ों ने अलग मुश्किल खड़ी की हुई थी। वो धीमे कदमों से जोहा की तरफ बढ़ा। जोहा ने झुंझुलाकर एक बार फिर सर पर दुपट्टा टिकाया जो फिर से सर से ढलक गया। जावियान ने शीशे में दोनों के अक्स को देखा। उनकी जोड़ी हसीन थी। दोनों के कद दराज थे, सुनहरी रंगत और तीखे नकोश। दोनों साथ खड़े हसीन लग रहे थे। जोहा, जावियान ने सरगोशी की। जोहा ने नजरें उठाई तो शीशे में नजर आते अक्स पर नजर पड़ी। जावियान बहकी नजरों से जोहा को देख रहा था। जोहा के दिल में हलचल हुई। तुम्हें किस लम्हे मुझसे मोहब्बत हुई थी? सरगोशी में सवाल हुआ और फिसों का किला धड़ाम से गिरा। जोहा के चेहरे के जाविये बदले थे। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी और ना ही कभी होगी जावियान शाह। ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी है, जोहा ने कहा और आगे को बढ़ गई। जावियान ने उसे थाम कर रोका। नोज पिन जो टेबल पर पड़ी थी वो उठाई और जोहा की नाक में डाली। कल नथ खींचने की वजह से उसकी नाक पर जख्म आ गया था। जावियान ने नोज पिन पर दबाव डालकर उसे अंदर किया तो बेसाख्ता जोहा सिसक उठी। आंखें नम हो गई। जावियान ने अपने लब उसकी नाक पर रख दिए। ये नोज पिन उसने मदीहा से स्पेशल कहकर मंगवाई थी। हीरे का ये नग जोहा पर बहुत जच रहा था। नीचे से शोर की आवाज़ों पर वो दोनों किसी फिसूं से बाहर आए। जोहा जावियान के रवैये पर हैरान थी। जावियान ने दुपट्टा जोहा की गर्दन में डाला। साफ इशारा था कि फ़िलहाल सर पर लेने की ज़रूरत नहीं। जोहा के बाल खूबसूरती से सेट थे। मदीहा ने मेकअप के साथ जोहा के बाल भी सेट कर दिए थे। वो उसे लिए नीचे ड्राइंग रूम में आया। अपनी कज़न्स और चच्चियों को देखकर जोहा हैरान ही तो रह गई थी। ये लोग शायद उसकी बर्बादी का तमाशा देखने आए थे। वो झिझकते हुए सबसे मिली और अब्बा से इस तरह बगैर सर पर दुपट्टा लिए मिलने पर उसे बेहद हया आई थी। अम्मी अब्बू से इस तरह सजा देकर इत्मीनान में आ गए। जावियान बेड़े अदब से सबसे मिला और तायशा के सर पर हाथ रखा। तायशा यकदम उसका हाथ थाम बैठी। क्या आप मेरे भाई बनोगे? तायशा ने मध्यम सी सरगोशी की। मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने दिया ही नहीं। क्लास में सबके भाई हैं लेकिन मेरा नहीं। अगर आप मेरे भाई बन जाएंगे तो मैं भी क्लास में फ़ख्र से कह सकूंगी। तायशा की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। तायशा, आज से मैं तुम्हारा भाई। तुम भी क्लास में फ़ख्र से चलना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जावियान ने मुस्कुरा कर कहा और तायशा के सर पर हाथ रखा। ड्राइंग रूम में मौजूद कुछ लोगों की आंखें हसद ज़दा थी तो कुछ लोगों की आंखों में रश्क, और लोगों की नज़रों से पहली बार जोहा कन्फ्यूज़ हो रही थी। सबने उसे मुंह दिखाई का पूछा तो उसने सेट और नोज पिन दिखाई। हीरों का सेट आंखों को खैरां कर रहा था। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर उसके माँ बाप जोहा को दुआएं देते रुखसत हो गए। तुम आज साड़ी पहनोगी, जावियान ने सरसरी अंदाज में कहा। वो इस वक्त दोनों लंच कर रहे थे। जोहा हमेशा की तरह सर पर दुपट्टा टिकाए बैठी थी। उसकी शादी को 1 माह हो गया था और दावतों का सिलसिला जारी था। आज भी जोहा की चच्ची की तरफ दावत थी। जावियान के जोहा के चचा के साथ अच्छे बिजनेस टर्म्स थे। इस दावत में और भी बिजनेसमैन मदऊ थे और ये पहला फंक्शन था जहां जावियान शाह अपनी बीवी को मुतारिफ करवाता। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, जोहा ने साफ जवाब दिया। क्यों? जावियान ने उसकी तरफ देखा। मुझे बेहयाई पसंद नहीं, जोहा ने आम से लहजे में कहा। मगर मुझे पसंद है, जावियान ने जवाब दिया। जावियान, आप मुझे इस तरह के किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जोहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जावियान ने सर्द लहजे में कहा। मैं फिर भी ऐसी किसी बेशर्मी को नहीं अपनाऊंगी, जोहा ने सुकून से जवाब दिया और खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़कर मेरी दादी को अपने लिए कन्वेंस कर सकती हो,
उनकी दी हुई अंगूठी को मंगनी की अंगूठी से चेंज कर सकती हो, लेकिन साड़ी नहीं पहन सकती। तुम हया मुझे जब दिखाओ जब तुम्हारा माजी साफ हो। जोहा के जवाब ने जावियान के गुस्से की गिराफ को हवा दी। मैं आपकी इस गलत फहमी को 1000 बार क्लियर कर चुकी हूँ। मैं नहीं जानती दादो ने आपसे क्या बातें की, लेकिन मैं उन सब बातों से बरी हूँ, क्योंकि मैं कभी उन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं थी। जोहा ने भी सख्ती से कहा। जोहा बेगम, मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुमने दादी को कोई पसंद के धागे ना दिए हों। वो इतनी बड़ी कसम मुझसे ऐसे नहीं ले सकती। जावियान ने ज़िद्दी लहजे में कहा। मेरे पास अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं, ये मेरी बदकिस्मती है, जोया ने कहा और उठकर कमरे की तरफ चली गई। जावियान ने गुस्से में खाने के बर्तन ज़मीन पर फेंके और दादो के कमरे की तरफ चला गया। आज उसे दादो की याद आ रही थी। वो उनके कमरे में गया, गहरे गहरे सांस लेकर उनकी खुशबू को महसूस किया, फिर उनकी अलमारी की तरफ बढ़ा। उनके कपड़ों पर हाथ फेरा तो अचानक दादो के कहे आखिरी अल्फाज याद आए कि उन्होंने अपने लॉकर में उसके लिए कुछ रखा हुआ है। वो ये बात भूल गया था। आज उनके कमरे में आया तो ये बात याद आई। उसने लॉकर खोला तो सामने लिफाफे में एक खत था। उसने खत कांपते हाथों से खोला। जावियान, मेरे बच्चे, ढेरों प्यार। जब ये खत तुम्हें मिलेगा तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। जावियान, मैं जोहा से तुम्हारी शादी कराना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जब से उस बच्ची को देखा था ऐसा लगता था जैसे वो मेरी अपनी हो, लेकिन मैं समझ ना सकी मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों है। और फिर एक दिन मुझे उसका जवाब मिल गया। वो अपनी फैमिली की तस्वीरें मुझे दिखा रही थी। उसमें मैंने हैदर सलीम को देखा, मेरा भांजा। सलीम ने 2 शादियां की थी। हैदर उनकी पहली बीवी से था। मेरी बहन सफ़ीना का हैदर की पैदाइश पर इंतकाल हो गया था। बाद में सलीम ने दूसरी शादी कर ली और उनके बाकी बच्चे पैदा हुए। पहले तो हैदर मुझसे मिलने आते रहे, फिर मैं तुम्हारे बाबा की शादी के बाद इंग्लैंड शिफ्ट हो गई तो हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। हैदर की शादी हुई तो मैं उसमें भी शामिल ना हो सकी। जब पाकिस्तान आई तो पता चला हैदर के यहाँ जोहा हुई है। मैंने तुम्हारे बाबा और मम्मी की रजामंदी लेकर जोहा से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। फिर हम इंग्लैंड चले गए और फिर वापस लौट कर ही ना आए। ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि हैदर ने अपना आबाई घर बेच दिया था। तुम्हारे बाबा की वफ़ात के बाद मैंने हैदर को ढूंढना चाहा, लेकिन मैं उससे मिल ना सकी। तुम्हारी पढ़ाई के सिलसिले में मैं तुम्हारे साथ कनाडा चली गई और इस तरह हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब हैदर को जोहा के बाप की हैसियत से देखा तो पता चला जोहा से मुझे इतनी मोहब्बत क्यों है। ये तो मेरे जावियान की जोहा है। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम कराची चले गए बिजनेस के सिलसिले में, और मुझे लगता है अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकती और तुम्हारे नाम ख़त लिख दिया। मुझे उम्मीद है जावियान, जोहा तुम्हारी दुल्हन बनेगी। मेरी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करना। बहुत सारा प्यार, तुम्हारी दादी। जावियान को लगा था घर की छत उस पर गिर गई हो। वो कितना गलत समझ रहा था। ये क्या कर बैठा था वो। जोहा को उसने कितना गलत समझा था कि दादू की ज़िद पूरा करने के लिए उसने हारून तक को अगवा करवा लिया और शादी के बाद भी हर पल जोहा को बेहयाई के ताने दिए। कितना कुछ था जो उसने अपने हाथों से ही गलत कर दिया था। ये खुद जोहा से कभी मोहब्बत की और ना कोई आपसी माहौल पैदा किया कि जोहा को उससे मोहब्बत हो जाए। हर दफ़ा जोहा को देखकर वो एक नए अंदाज से चौंका था। हर बार दिल ने मोहब्बत की तरफ राग़िब किया था, लेकिन वो भी ज़िद पर अड़ा था। मैं इन सब चीज़ों को सुधार दूंगा, जावियान ने खुद से वादा किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शादी के 1 माह बाद कौन वलीमा देता है। जोहा ने झुंझुलाकर तायशा से कहा, भाई की मोहब्बत है ये तो, देखें तो कितना हसीन जोड़ा भेजा है। तायशा ने पिंक कामदार लहंगा कुर्ती की तारीफ की। आज उनका वलीमा था। दोनों हाथों में हाथ डाले स्टेज तक आए थे। जाविया ने सारी हकीकत हैदर साहब को बताई तो वो बहुत खुश हुए कि जोहा की शादी उसकी बचपन की मंग से हुई।
زاویان کو انہوں نے بتایا تھا کہ کافی عرصہ ان لوگوں نے زاویان کا انتظار کیا، ڈھونڈا بھی بہت، لیکن جب نہ ملا تو تھک ہار کر ہارون سے منگنی کر دی۔ یہ بات صرف زوہا نہیں جانتی تھی، باقی امی، ابو اور تائشہ اس سے واقف تھے، اور زاویان نے سب کو منع کیا تھا کہ وہ یہ بات زوہا کو خود بتائے گا۔ آج کی تقریب شاندار گزری۔ زاویان کی وارفتہ نگاہیں زوہا کو حیران کر رہی تھیں، اور حیران تو وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر بھی ہوئی تھی۔ زاویان نے کمرے کو ریڈ فلاور سے سجایا تھا۔ زوہا کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی جب زاویان کمرے میں داخل ہوا۔ زوہا، زاویان شاہ۔ زاویان نے مدھم سی سرگوشی کی۔ زوہا نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زوہا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ زاویان نے اسے کندھوں سے تھام کر نرمی سے سوال کیا۔ زوہا اس کی محبت لٹاتی نظروں سے گھبرا گئی، نظریں پھیر لیں لیکن جواب نہیں دیا۔ زوہا، زاویان نے سرگوشی کی، مجھ سے بھی یہ سوال کرو نا، اس نے زوہا سے فریاد کی۔ زوہا نے زاویان کو دیکھا۔ اتنی حیرانی سے نہ دیکھو زوہا، میں ان آنکھوں میں بہت پہلے ہی ڈوب گیا تھا۔ مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ تمہاری مزاج کی سختی نے، تمہارے کردار کی مضبوطی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ بس اظہار محبت کے بیچ انا آ گئی تھی۔ تم میری بچپن کی منگ ہو زوہا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، میرے دل میں جو تمہاری محبت کا سمندر ہے اس نے ساحلوں پر ٹھاٹے مارنا شروع کر دی ہیں۔ محبت کی لہریں کہتی ہیں کہ اس حسینہ کو حال دل بتا دو۔ زوہا تمام سچائی سن کر ششدر تھی۔ مجھ سے محبت کر لو زوہا، میں تمہیں ہمیشہ دل میں رکھوں گا، دنیا کے سرد و گرم سے بچاؤں گا۔ تم میرا سہارا بن جاؤ، میں تمہارا سایہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ زاویان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زوہا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زوہا نے جھجکتے ہوئے نم آنکھوں سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زاویان نے ہیروں کا بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنا کر اس کا ہاتھ چوم لیا۔